ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ابھی آپ کو ملتان کے علاقہ لطیف آباد میں لیے چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یوتھ کنونشن سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی خطاب کر رہے ہیں. کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو بہت سی جماعتوں پر مشتمل ہے اور وہ تمام اہم جماعتیں جو پاکستان کی ہیں اپوزیشن کی وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے جلسوں کے اعلانات کیے. ہم نے ریکویسٹ کی پی ڈی ایم سے کہ 2 جلسے آپ ہمیں دیں, ہم آپ کی میزبانی کریں گے. اور ان کی انتہائی شفقت اور مہربانی تھی پی ڈی ایم کی کہ انہوں نے کراچی کا جلسہ عام, چونکہ ہمارے بہت سے شہید 200 سے زائد شہید اور کئی ایسے تھے جو ہینڈی کیپڈ ہو گئے اور وہ گمنام سپاہی جمہوریت کے لیے جو وہاں سانحہ کارساز میں شہید ہوئے ان کو تکفین ہم نے گڑی خدا بخش میں کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مزار کے ساتھ کیا تاکہ وہ گمنام سپاہی جمہوریت کے علمبردار جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حفاظت کی, میں ان کو یہاں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے ان کی شہادت کی وجہ سے ہم نے ریکویسٹ کی پی ڈی ایم کو کہ یہ جلسہ میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے, چونکہ 18 اکتوبر کا سانحہ تھا 2007 میں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر جب حملہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ہم وہ یادگار مناتے ہیں اور ان شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور پی ڈی ایم کے کہنے پر ہم نے جلسہ کیا. پی ڈی ایم نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے ہم سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس مرتبہ پھر بلاول بھٹو چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی نے ریکویسٹ کی پی ڈی ایم کہ ہم ملتان کے جلسہ عام کو ہم اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. یہ میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کی کیوں ہے کہ چونکہ 30 نومبر کو ہمارا جو یہاں سب سے بڑا پروگرام پیپلز پارٹی کا ہے وہ یوم تاسیس ہے. اس دن فاؤنڈیشن ڈے ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس دن پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ تاریخی شہر مدینۃ الاولیاء میں ہوگا, قلعہ کونا قاسم باغ میں ہوگا, جلسہ عام ہوگا. اور آج جو ہمیں تانا دیتے تھے ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو کھانا دیں گے اور آپ جلسہ کر کے دکھائیں, تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں جب ہم جلسہ کرنے لگے ہیں تو آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ہاتھ بنا رہے ہیں. آپ جتنی رکاوٹیں کھڑی کریں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم کل پشاور میں بھی جلسہ عام کریں گے اور 30 کو ملتان میں بھی جلسہ عام. اور آپ نوجوان ہماری قوت ہے, ہماری طاقت ہے اور یہ آپ کل کے مستقبل کے آپ لیڈر ہیں. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں, کیا آپ پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تاکہ ہم جلسہ عام یہاں ملتان میں کریں؟ اور ہم نے ان کو کہا ہے ہم بہت آئینی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اور
मीडिया की आज़ादी के लिए और माशी जो हालात है मुल्क के उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इस वक्त मुल्क में महंगाई है, इस वक्त मुल्क में बेतहाशा महंगाई है। जो लोग हैं वो उसकी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और लोग जो हैं उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा और ये प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महंगाई है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो महंगाई है उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है, आपके हकूक के लिए आवाज बुलंद की है। कहा गया था आपको 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, जबकि 27 लाख लोग बेरोजगार अब तक हो चुके हैं। कहते थे हम आपको छत देंगे, हम आपको 50 लाख घर बनाकर दे देंगे, तो कई लोगों से छतें भी छिन चुकी हैं। और कहते थे हम जो गंदम है, जो चीनी है, जो कपास है, जो राइस है, चावल है, वो आपको सस्ता मिलेगा। वो तो और बात है, या दाल भी सस्ती नहीं मिलती और लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। यहां सरकारी मुलाजिमीन भी हैं, कितनी तनख्वाहें हैं उनकी, जितनी उनकी तनख्वाहें हैं उससे ज्यादा महंगाई हो चुकी है। अब उनका हाल जो है बुरा हो चुका है। अब हम जलसा करना चाहते हैं, वो कहते कोरोना है। तो जब हम पहले कहते थे कोरोना है तो वो कहते नहीं फ्लू है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अवाम के हकूक की बात करते हैं तो सारे वजीर हमें पड़ जाते हैं। और कौन से वजीर हैं? वही वजीर हैं जो आधे मेरे थे, आधे मुशर्रफ साहब थे, वही वजीर हैं। और फिर कहते हैं हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। आप मुझे बताएं, पुराने कारीगरों के जरिए अगर नया पाकिस्तान बनाना होता आपको, तो फिर कारीगर भी नहीं लेते। कारीगर पुराने हैं, अगर वो इतने अच्छे होते तो हमारे साथ भी कोई अच्छा काम करते हैं। ये वो लोग हैं इब्नुल वक्त जो हर दौर में हर हुकूमत के साथ होते हैं। लिहाजा मैं आज आपसे ये वादा लेना चाह रहा हूं, अगर हुकूमत ने ज्यादती की और उन्होंने नाइंसाफी की और हमें उनसे इजाजत की जरूरत नहीं है, हम उनकी रियाया नहीं है। हमें आईन हक देता है कि हम अपना इजहार राय कर सकते हैं, हम जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं और बाकी जमातें भी कर रहे हैं। तो हमें इजाजत ना देंगे तो उस सूरत में आप हमारा साथ देंगे? इंशाअल्लाह साथ देंगे। हाथ खड़े करें। तो इंशाअल्लाह जब नौजवान हमारे साथ हैं तो फिर कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं बल्कि उनसे गुजारिश करूंगा, इंतजामिया से भी। हमने आपके साथ अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया था, हमने आपका ख्याल किया था। जब आपके साथ ज्यादतियां होती थी हम आपको रिलीफ देते थे, आइंदा भी देंगे, मगर आप गलत ऑर्डर्स उनके ना माने, ऐसे ऑर्डर्स ना माने जिससे यहां गैर आईनी इक़दाम हो जाए। तो लिहाजा मुझे पूरा यकीन है कि इंतजामिया भी अपने फराइज जो हैं वो खुश असलूबी से वो उनको मुकम्मल करेगी और जो अकाबरीन लीडर पाकिस्तान के यहां आ रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं,
वो बहुत अहम लोग हैं और उनके अपनी अपनी पार्टियों की बहुत बहुत बड़ी पोजीशन है, सूबों में भी सेंटर में भी। आज भी अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है उनकी अक्सरियत बनती है। तो इसलिए हम किसी चोर दरवाजे के जरिए हुकूमत में नहीं आना चाहते, हम आपकी ताकत से आना चाहते हैं। जब आपकी ताकत के जरिए हम आएंगे, हम आपके लिए बेहतर खिदमत कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्तान में जितने काम हुए इससे पहले कभी हुए और उसके बाद हुए, तो फिर ये किस चीज का रोक डालते हैं हमारे ऊपर? काम हमारा करते नहीं है और कहते हैं कि जी हमारा हुक्म माने। क्या उन्होंने वादा किया था कि आपको 3 महीनों के अंदर अंदर आपको सूबा देंगे, आपका अपना सूबा बनाएंगे? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में जाकर कहते हैं हम आपको सूबा देंगे, तो पहले ये तो बताएं जो हमसे वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं, तो दूसरा जगहों पर कैसे सूबे बनाएं? हमने वादा किया था हम खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त देंगे, हमने शनाख्त दी। हमने वादा किया था गिलगित बल्तिस्तान में हम एम्पावरमेंट करेंगे। आपने देखा होगा वहां का वजीर आला भी है, वहां की असेंबली भी है, वहां का स्पीकर भी है, वहां का गवर्नर भी है, वहां का हाई कोर्ट भी है, वहां मोहतसिब आला भी है। तो ये क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था? पीपल्स पार्टी ने दिया था और सूबा भी पीपल्स पार्टी ही आपको देगी। हम कहते सूबा दें, वो कहते दफ्तर ले लें, सेक्रेटेरिएट ले लें। आप सेक्रेटेरिएट का कैसे वादा कर सकते हैं? सूबा बना नहीं। आप कहते हैं कि आधे अफसर बहावलपुर में बैठेंगे और आधे अफसर मुल्तान में बैठेंगे। जो बहावलपुर वाले हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जय हमने फैसला अपने हक में करा लिया। जो मुल्तान वाले हैं वो बोर्ड लगा रहे हैं हर जगह पे, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी कि हमने सेक्रेटेरिएट यहां बनवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेक्रेटेरिएट आपका हक है। जब आपका सूबा बनेगा, आपकी असेंबली बनेगी, फैसला असेंबली करेगी, यहां के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे कि सूबा कैसा होगा, निजाम क्या होगा, दारुल खिलाफा कैसा होगा। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये तो आपने फैसला करना है, अवाम ने करना है। तो ये मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बना था, मशरकी पाकिस्तान भी था, मगरबी पाकिस्तान भी था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दारुल खिलाफा कहां बनाया था? कराची में बनाया था। फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद में है। तो अब ये कौम के मुंतखब नुमाइंदे ही हैं जो फैसला करते हैं कि दारुल खिलाफा कहां हो। ये कोई इनका हक नहीं पहुंचता कि अवाम की राय लिए बगैर, सूबा बनाए बगैर सेक्रेटेरिएट के लिए हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बहावलपुर वाले भी महरूम हैं, महकूम हैं और उधर भी पसमानगी इतनी है जितनी आपकी। वही पसमानगी डेरा गाजी खान की है। तीनों डिवीजन्स उनकी हालात एक जैसे हैं और हम चाहते हैं इन महकूम लोगों का हक देना चाहिए। इनको एनएफसी अवार्ड के मुताबिक, हिस्से के मुताबिक, यहां सूबाई एनएफसी अवार्ड जो मैंने दिया था उसके बाद नहीं आया, तो वो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर जिले को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। और जब अब उनको हिस्सा मिलेगा तो फिर यहां तरक्की होगी, और तरक्की उस वक्त होगी जब आपका अपना सूबा होगा और फिर रोजगार भी मिलेगा।
اور ہر چیز آپ کو ملے گی۔ تو انشاءاللہ 30 نومبر کو آپ قلعہ کونا قاسم باغ تشریف لائیں اور آپ خود دیکھیں جو پاکستان کے اکابرین ہیں وہ آپ کے حق کے لیے کیا آواز بلند کرتے ہیں، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے وہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی امنگوں کی ہم ترجمانی کریں گے، آپ کے حقوق کی بات کریں گے، آپ کے حق کی پروٹیکشن کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یوتھ کنونشن کے آرگنائزر اور یہاں کے تمام تنظیمیں اور جو ادھر آج شمولیت کی ہے، یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 نومبر کو تمام یوتھ جو ہے وہ بمائے اپنی شناخت کے تشریف لائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتان کے علاقہ لطیف آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوتھ کنونشن جاری ہے۔ یوتھ کنونشن سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم متحد ہے، ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، اس حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ یہ بھی کہا کہ ملتان کے جلسے کی میزبانی ہم کریں گے۔ 30 نومبر کو یہاں سے سب سے بڑا پروگرام یوم تاسیس کا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اس دن بنیاد رکھی گئی۔ ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ جلسہ کریں گے، آپ کی رکاوٹوں سے نہیں ڈرنے والے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، 27 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پانچویں تھل جیپ ریلی کے انعقاد سے تھل میں رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا۔ رنگ برنگی چیختی چنگارتی بھاگتی دوڑتی گاڑیاں شائقین موٹر سپورٹس کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مختلف ٹیلوں پر قائم کیمپس نے ایونٹ کی رونق بڑھا دی۔ شائقین نے ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ کر کوالیفائنگ راؤنڈ کو خوب انجوائے کیا۔ رپورٹ کریں گے محمد مقصود۔ پانچویں تھل جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے میں 44 سٹاک کیٹیگری، 3 خواتین کیٹیگری نے حصہ لیا۔ کرونا وائرس کے باعث ٹریک 105 کلومیٹر تک محدود کر دیا گیا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز تیمور خواجہ کی گاڑی سے ہوا، جبکہ آخری گاڑی رکشدنا جبیں کی تھی جو 105 کلومیٹر کے ٹریک پر رواں دواں ہوئی۔ سپر سلما کا کہنا تھا کہ ٹریک سنگل اور تنگ ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے گاڑی روڈ پہ تو ہمیشہ ہر کوئی ڈرائیو کر لیتا ہے، بیسیکلی تو روڈ سے ہٹ کر اور ریت پہ ڈرائیو کرنا اور جب گاڑیاں ڈرفٹ کرتی ہیں اور عجیب سا ایک وہ مٹی دھول میں چلانا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کسی کو کمپٹیٹر کو دیکھ کر نروس نہیں ہوں، بس تھوڑا سا ٹریک ہے، فرسٹ ٹائم ہے تو تھوڑی بہت نروس ہوں، لیکن انشاءاللہ ون کروں گی، ارادہ تو پورا ہے۔ ٹیم سلطان کے ریسر کا کہنا تھا کہ بہت اچھے کی امید ہے اور رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ ٹریک چھوٹے ہونے سے بھی کافی فرق پڑا ہے اور مقابلہ کافی سخت ہوگا۔ ٹیم سلطان سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں میں جی، اور انشاءاللہ امید اچھی ہے جی، انشاءاللہ رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں بہادر عزیز سائیں فرسٹ ہیں اپنی کیٹیگری بی میں اور سیم رزلٹ ہے، لاسٹ ایئر تو وہ ایف ٹی ڈی تھے اور ٹریک تو سیم ٹریک ہے اور ریسرز کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹریک ہے۔ پانچویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ ضلع لیا میں چبارہ کے مقام پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ موٹر بائکس کی ریس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سٹاک کیٹیگری کا مرحلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ کل پری پیڈ کیٹیگریز کے ریسرز آپس میں ٹکرائیں گے، جو جیتے گا صحرا اس کے سر سجے گا۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد مقصود، روہی، ملتان۔ لیا میں پانچویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ سٹاک کیٹیگری میں 49 جبکہ خواتین 3 ریسرز نے حصہ لیا۔ جیپ ریلی موڈیفائیڈ کیٹیگری کا مرحلہ کل ہوگا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لیا میں پانچویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عاشر اشفاق سے۔ عاشر، کہیے گا دوسرے دن کے مناظر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
जी बिल्कुल, लैया में इस टाइम इनके अंदर जो है हर हवाले से अगर बात की तो जहाँ पर नेज़ाबाजी के बहुत शानदार मुकाबले देखने को मिले, इसके साथ साथ दीगर जो म्यूसिकी की रंग था वो भी हमें नजर आया। और यहाँ पर बहुत सारे दिलचस्प मुकाबले हुए। यहाँ पर इसके साथ साथ अगर बात की तो रस्साकशी के मुकाबले भी हुए और उसके साथ आज जो है मैजिक शो भी का जबरदस्त मुकाबला था। यकीनन देखकर तमाम जो हाजरीन थे, मर्द और खवातीन हाजरीन थे, तो उनको बहुत मजा आया। और जो थल मेला जो है अब थल की पहचान बन चुका है। और यकीनन जो MPA चौबारा हैं लाला तहर रंधावा, उनकी तरफ से भी रोही टीम का भी शुक्रिया अदा किया कि रोही ने जो है भरपूर अंदाज इस इवेंट कवर किया। और अभी कल का दिन बाकी है, तो यकीनन आपको मजीद जो है कल का दिन कैसा देख रहे हैं, कल किस तरह की एक्टिविटीज होंगी और थल मेले के हवाले से क्या क्या कल एक्टिविटीज होंगी? जी बिल्कुल, कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन यकीनन जो थाल का मेला वो पीक पर होगा। स्टॉल्स बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। तो इसके साथ साथ कल जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर झूमर जो है वो हमारा सकाफती रंग है, उस तरह की वो सेब का कल्चर भी है। तो उस पर भी एक बड़ी खसूसी तौर पर जो टीमें हैं, जो तलबा हैं और मुख्तलिफ इलाकों से झूमर पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और बड़ा बेहतरीन मुकाबला होगा इसके साथ। और दूसरा अगर बात करें, कल एक खास इवेंट है, वो है ऊँट डांस। ऊँट डांस जो है लैया के अंदर बड़े अरसे बाद देखने को मिलेगा। तो ऊँट डांस को देखने के लिए भी शौकीन खिंचे चले जाएंगे और यकीनन आपको भी ये बहुत मजा करेगा और ये बहुत इंजॉयबल मोमेंट होंगे। इसके साथ साथ म्यूजिकल का जो तड़का है, म्यूजिक जो सिंगर है, लोकल सिंगर, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके साथ मुख्तलिफ जो घोड़ा डांस है वो भी कल उसका भी इनेकाद किया जाएगा। सर्दी भी काफी बढ़ रही है, लेकिन लोग जो है वो जैसे ही मेले का सुन रहे हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। सुबह सवेरे ही हम यहाँ पे मौजूद हैं कवरेज के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कल किस तरह, क्योंकि कल संडे भी है, दूर दराज के इलाकों से लोग आज भी आए हुए थे, तो कल किस तरह का रश देखेंगे? अच्छा, आपने देखा कि आज भी जो है ना हमारे हमसाया डिस्ट्रिक्ट हैं, जंग, भक्खर, इसके साथ साथ दीगर जो डेरा इस्माइल खान और दीगर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर शौकीन आए होते, मर्द और खवातीन शौकीन आए होते और उन्होंने खूब इंजॉय किया इस मेले को। कल संडे का दिन है, यकीनन जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है अराइवल की वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और उनको इंतजामात भी जो है भरपूर अंदाज से किए गए हैं। और यकीनन कल का जो दिन है मेमोरेबल दिन होगा, हिस्टोरिकल दिन होगा और उसको भरपूर अंदाज से इंजॉय किया जाएगा। और अगर बात कीजिए कल, तो कल के जो दिन है वो उसको बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के हवाले से इंतजामिया भी अभी से तैयारियों के अंदर मसरूफ है। और जो तैयारी है वो कल की मुकम्मल थी, जरूर थी, लेकिन उसके अंदर मजीद चेंजेस की जा रहे हैं ताकि जब शौकीन जहाँ पहुंचे तो उनको यहाँ पर भरपूर इंटरटेनमेंट का जो समा है वो मिले। और हर हवाले से जो कल का दिन है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, यादगार बनाया जाएगा और यकीनन जो रोही की टीम है भरपूर उनके साथ होगी। जी बिल्कुल, रोही की टीम उनके भरपूर साथ होगी और हम भरपूर तरीके से कवरेज भी कर रहे हैं। आज सुबह से ही काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भरपूर तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस रैली में शिरकत की है। और जैसे ही मेले का इनेकाद किया गया है तो इस मेले में भी शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जो खसूसी तौर के ऊपर जाहिद ने भी बताया है, यहाँ पर जो घोड़ डांस है और इसी के साथ नेज़ाबाजी है और दीगर मुकाबले भी यहाँ पर कराए गए हैं। इसी तरह से कल इतवार का दिन है तो मजीद एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके उनकी ख्वाहिश होगी, विश होगी कि वो भी यहाँ पर कल हर सूरत पहुंचे, क्योंकि कल आखिरी दिन है, इख्तितामी तकरीब भी होगी और खसूसी तौर के ऊपर शहरी भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। और जीप रैली की हम बात करते हैं तो कल मॉडिफाइड आखिरी जो रैली होगी वो यहाँ पर होगी। कल भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और भरपूर तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक सजाया गया है उस पर गाड़ियां हमें दौड़ती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पर पहुंचेंगी चौबारा पर। और इख्तितामी तकरीब अगर जीप रैली की बात करते हैं तो वो मुजफ्फरगढ़ में होगी, लेकिन यहाँ पर थल में जो मेला सजा है इस मेले की इख्तितामी तकरीब यहीं पर होगी। इस टाइम भी आप देख सकते हैं काफी सारे शहरी यहाँ पर जमा हो चुके हैं, क्योंकि इवेंट्स की कमी है और कोरोना भी है। इसके हवाले से खसूसी तौर के ऊपर क्योंकि शहरी काफी दिनों से घरों में थे, मुश्किलात थी लोगों को, लेकिन अब इवेंट जो आए हैं यहाँ पर आ रहे हैं और खसूसी तौर के ऊपर मास्क का भी यहाँ पर इंतजामिया की जानब से बार बार स्टेज से ऐलान किया जाता है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और यहाँ पर जो भी है SOPs का खास ख्याल रखें। जी, शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जीप रैली मॉडिफाइड कैटेगरी का मरहला आशिर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लैया में थल जीप रैली की दूसरी रात की महफिल जारी, जिसमें MPA लाला ताहिर रंधावा भी शरीक हैं। MPA का कहना है कि रोही टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भरपूर कवरेज दी। बात करेंगे जाहिद सरफराज से, जाहिद बताएगा मजीद क्या कहना है।
लैया के सहराम में सजे 5वें थाल मेले के हवाले से अगर बात की तो रात के वक्त भी थाल मेले की जो रौनकें हैं वो इस जगमगा रही हैं। यहाँ पर लैया में थाल मेले के अंदर जो इस रात के अंदर मुख्तलिफ जो खेलों के मुकाबले हैं वो हो रहे हैं, साथ साथ म्यूजिकल जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर जारी है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ स्कूलों के और लोकल जो सिंगर है वो हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर शौकीन की कसीर तादाद जो है रात के वक्त मौजूद है, जो रात के वक्त जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है उनको शानदार अंदाज से इंजॉय कर रहे हैं। बात की तो यहाँ पर छोटे बच्चे बड़े और उसके साथ खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद है जो इन प्रोग्राम्स को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ MP लाला ताहिर रंधावा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लाला जी, बड़ा बेहतरीन मेला कराया आपने चौबारा के अंदर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5वां जीप थाल रैली है जो इंशाल्लाह अभी चल रही है। आप भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम। मैं खसूसन रोई का मशकूर हूँ और खसूसन वांदर साहब का जो बड़ी मेहनत से हमारे तमाम जितनी भी जीप रैली हुई हैं उनको लाइव चला रहे हैं। और ये आपके सामने मेला है इसलिए कि ये हमने जनाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पे इसको कोरोना कर रहे थे, उसके बावजूद हमने ये रैली का इंतज़ाम किया। मैं खसूसन DCO लैया और उसके तमाम AC खसूसन सुलेमान साहब का जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है। और मैं मीडिया का खसूसन शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मीडिया यहाँ तशरीफ लाए। ये अवामी मेला है, इंशाल्लाह ये बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, लाला ताहिर रंधावा MP चौबारा का यही कहना है कि अवामी मेला है और बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से बेहतरीन कवरेज पर रोही का शुक्रिया अदा किया है जाहिर सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान के नवाही इलाका राजनपुर कलां के नवाही बस्ती कुतुब आहेर में पानी के लिए बोर करने के दौरान गैस बरामद। पाइप में से गैस के खराज पर आग लगाकर देखने पर शोला भड़क उठा। पिछले 25 घंटे से मुसलसल आग का शोला जल रहा है। SNGPL हुकाम ने माहिरीन को बुलाने का कहकर जगह को घेरे में ले लिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, कुछ देर गैस बरामद होने वाली जगह पर गए थे, उन्होंने लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। जी, रहीमिया खान का नवाही इलाका है राजनपुर, उसके करीब ही तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर कुतुब बस्ती आहेर है। वहां पर घर में नलका के लिए बोर किया जा रहा था और नलके के बोर के दौरान ही ये गैस वहां से बरामद हुई है। बोर तकरीबन 60 फुट नीचे किया गया, फिर गैस की आवाज यहाँ पर आई तो आग जलाई गई, तो ये आग जल गई। अब SNGPL के हुकाम यहाँ पर आ चुके हैं, इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में देखने आ रहे हैं कि आग का शोला पिछले 24-25 घंटे से मुसलसल यहाँ पर जल रहा है और लोग इसको देखने आ रहे हैं कि ये कुदरती गैस का शायद बहुत बड़ा जखीरा या जहाँ पर मौजूद जो गैस है वहाँ पर इसकी दरियाफ्त हो चुकी है। कैसे आप मुझे ये बताएं कि कितने फुट पर आपने ये जब इसकी बोर कर रहे थे नलके के हवाले से पानी की तलाश के लिए, तो कितने फुट पर गहरा बोर किया गया और कितने फुट पर गैस आई है? बोर सर कितने 60 फुट थे, 60 फुट तक कितने वापसी जमल पैप छिकन पे से ना 38 तो 38 दरमियान है गैस आ गई है। किस तरह की आवाजें आई, आप लोगों को पता लगा? शुकाट इवें गैस जिमें हाथ न रखने वे ना, इवें हाथ न रखने उत्ते चाह गिंदात बल तीली जो लाती है भाव बाल गई है। कोई महकमे वाले आए तो क्या कह के गए आप लोगों को, किस तरह से इसके किया जाएगा और क्या इसमें मजीद तहकीकात की जाएगी? महकमे वाले सर आए थे, उन्होंने चेक किया है कि हमारी गैस तो लीक नहीं हुई कहीं से, लेकिन यहाँ पर कोई कनेक्शन गैस का नहीं है। तो बोल के गए कि 24 घंटे इनको चलने दें, उसके बाद फिर हम आएंगे आगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन 24 घंटे के लिए चलने के लिए कहा जा रहा है। जब वो गैस का पाइपलाइन लेके जा रहे थे उस वक्त भी एक दफ़ा शोर आया, जब बाहर निकाल रहे थे फिर भी शोर आया, तो आग जलाई तो आग जल गई। SNGPL के हुकाम यहाँ पर आ चुके हैं। पिछले 25 घंटे से यहाँ पर गैस का ये शोला जल रहा है और तो ये लोगों की ख्वाहिश भी यही है और दुआ भी यही है और तो भी की जा रही है कुदरती गैस का ये ज़खायर मिल जाए। गैस की जगह को घेरे में ले लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, जराइम पेशा सरगर्मी में मुलविस होने पर सऊदी अरब एयरपोर्ट हुकाम ने 143 पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन से इनकार कर दिया। 143 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। तमाम पाकिस्तानी सऊदी एयरलाइन की परवाज SV800 के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने पर सऊदी अरब एयरपोर्ट हुकाम ने 143 पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन से इनकार कर दिया। 143 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। तमाम पाकिस्तानी सऊदी एयरलाइन की परवाज
00 के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सऊदी अरब ने गैर कानूनी रिहाइश पजीर 143 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए। पाकिस्तानी सऊदी एयरलाइन की परवाज SV800 के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने पर सऊदी अरब एयरपोर्ट हुकाम ने 143 पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन से इनकार कर दिया। महकमा औकाफ मुल्तान की जानिब से मज़ारात पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से अहकामात जारी। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से तमाम सर्कल मैनेजर्स को SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करने की हिदायत कर दी गई। महकमा औकाफ की जानिब से मज़ारात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से तमाम सर्कल मैनेजर्स को मज़ारात पर SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करने की हिदायत दी गई है। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर हुसैन आगाही बाजार में कार्रवाई की गई। मुतादिद दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई ACCT आबिदा फरीद और DSP की क़यादत में की गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में कोरोना SOPs पर खिलाफ वर्जी पर हुसैन आगाही बाजार में कार्रवाई की गई। मुतादिद दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई ACCT आबिदा फरीद और DSP की क़यादत में की गई। बहावलपुर और रहीमिया खान के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो केस रिपोर्ट होने पर आलमी अदारा सेहत और महकमा सेहत के अफसरान ने सर जोड़ लिए। आइंदा पोलियो मुहिम में मुतासरा तहसीलों में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर और रहीमिया खान के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो केस रिपोर्ट होने पर आलमी अदारा सेहत और महकमा सेहत के अफसरान ने सर जोड़ लिए। आइंदा पोलियो मुहिम में मुतासरा तहसीलों में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। बहावलपुर में सहूलत बाजारों से आवाम की अदम दिलचस्पी। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद करने के अहकामात। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने गल्ला मंडी सहूलत बाजार बंद करने की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भेज दी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में सहूलत बाजारों से आवाम की अदम दिलचस्पी। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने गल्ला मंडी सहूलत बाजार बंद करने की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भेज दी है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में सहूलत बाजारों से आवाम की अदम दिलचस्पी। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद कर दिया गया और अहकामात भी जारी कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने गल्ला मंडी सहूलत बाजार बंद करने की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भेज दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में सहूलत बाजारों से आवाम की अदम दिलचस्पी होती जा रही है। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने गल्ला मंडी सहूलत बाजार बंद करने की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी भेज दी है। आपको बताते चलें बहावलपुर में सहूलत बाजारों से आवाम की दिलचस्पी अदम दिलचस्पी। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने गल्ला मंडी सहूलत बाजार बंद करने की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी भेज दी है। बहावलपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर सहूलत बाजारों में आवाम की अदम दिलचस्पी देखने को आ रही है। जिला भर में चौथा सहूलत बाजार बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम कंट्रोल मीटिंग की। मीटिंग में SDPO, सदर सर्कल, मियां चनू सर्कल, SHOs और तफ्तीशी अफसरान समेत मुहर्ररान ने भी शिरकत की है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने सदर सर्कल खानेवाल और सर्कल मियां चन्नू के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम कंट्रोल के हवाले से मीटिंग की है। मजीद पर हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम साहब हमारे मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, सदर खानेवाल और सर्कल मियां चन्नू के तफ्तीशी अफसरान पुलिस अफसरान के साथ आपने क्राइम कंट्रोल के हवाले से मीटिंग की है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इन दोनों सर्कल में और क्या हदायत और अहकामात जारी किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो मीटिंग थी तमाम इसमें IOs और उसके अलावा SDPOs और SHOs के साथ मीटिंग थी। इसमें तमाम की मिसलें वो चेक की हैं, इनकी जो प्रोग्रेस चेक की है, इश्तिहारियों के खिलाफ इनकी कार्रवाई चेक की है। उसमें कुछ लेकूनाज हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं और जिसकी जो है वो प्रोग्रेस ठीक नहीं थी उसको 10 दिन का टाइम दिया है। शोकाज नोटिस भी दिए हैं, 10 दिन का टाइम दिया। दोबारा ये मीटिंग इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड पे करूँगा और जो इसमें शॉर्ट कमिंग्स है वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। कुछ थानों की अच्छी प्रोग्रेस भी है, उनको शाबाश भी दी है, CC3 भी दी है।
اور جن کی پروگریس لیگ کرتی تھی ان کو میں نے ٹائم دیا ہے اور شوکاس کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کی میں اوورسی کروں گا، خود امپروو کریں گے اس کو۔ جی سر، اگر سرکل کبیر والا کی اگر بات کریں تو وہاں سے گزشتہ چند دنوں سے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ رازدانی اور ڈکیتی کے وارداتوں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی کوئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ وہاں پر بھی کنٹرول ہو سکے؟ کبیر والا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کافی بڑا سرکل ہے، ہمیشہ سے ہی کبیر والا میں اس طرح کا کرائم جو اگینسٹ جو پراپرٹی ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ کبیر والا میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 چوکیاں بنا رہے ہیں، آج میں وزٹ کر رہے ہیں، ایک ہم تھانہ سرائے سدھو کے علاقے میں اور ایک ویلی کرنگا کے علاقے میں۔ افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ندیم مقل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں ایم ڈی اے کی 84ویں گورننگ باڈی کا اجلاس، ہاؤس نے اسکیل 17 تا 19 میں پروموشن کے لیے 17 سال کی سروس ہونا لازمی قرار دے دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ابتدائی بھرتی کے لیے تعلیمی معیار میں ترمیم کی منظوری لی گئی۔ ملتان ماسٹر پلان کو ریوائز کرنے کے لیے سفارشات کمشنر ملتان ڈویژن کو بھیجنے کی منظوری لی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر ایم ڈی اے کی 84ویں گورننگ باڈی کا اجلاس، ہاؤس نے اسکیل 17 تا 19 میں پروموشن کے لیے 17 سال کی سروس ہونا لازمی قرار دے دیا۔ ملتان میں معروف صنعتکار الطاف شاہد کی صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک سمیت معروف صنعتکار آصف مجید، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی آصف علی کی شرکت، معروف صحافی افتخار الحسن، آصف نیازی اور علی خان بھی شریک ہیں۔ ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں معروف صنعتکار الطاف شاہد کی صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک شریک ہیں۔ تقریب میں معروف صنعتکار آصف مجید، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی آصف علی شریک ہوئے، جبکہ معروف صحافی افتخار الحسن، آصف نیازی، علی خان بھی شریک۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے ملتان سے، جہاں پر معروف صنعتکار الطاف شاہد کی صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک سمیت معروف صنعتکار آصف مجید، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی آصف علی کی شرکت، معروف صحافی افتخار الحسن، آصف نیازی اور علی خان نے بھی شرکت کی۔